Good morning, children. Welcome back in your history class. I hope you are fit and fine. Children, let's have, before going to our next topic, let's have a quick revision of the points whatever we have discussed earlier in our lecture. Children, we have discussed about the launching of non-cooperation movement in the plantation workers of Assam. We have also discussed about their interpretation, how they have interpreted the concept of Swaraj in their own way. We have also discussed about the visions of the non-cooperation movement. In this reference, we have discussed about the movement started in towns, movement started in Awadh peasant, started in Awadh, and that is called the Awadh peasant movement. And also we have discussed about the movement started in Gudem hills of Andhra Pradesh, where the tribal peasant have started the movement. We have also discussed about the plantation worker movement in Assam, and we have discussed about their visions of the idea of Swaraj, how they have interpreted the idea of such concept of Swaraj in their own meanings. We have discussed all these points in our earlier lecture. तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से असम के बागान मजदूरों ने आंदोलन को अपनाया और किस तरीके से उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया, और उनके हिसाब से स्वराज के क्या मतलब होते थे, हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। हमने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के दृष्टियों के बारे में भी पढ़ा, यानी उनके विजन्स के बारे में पढ़ा, और इस संदर्भ में हमने जो है आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के जो है आदिवासी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। हमने शहरों में आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ उसके बारे में पढ़ा। हमने अवध किसान आंदोलन के बारे में भी पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरीके से जो है स्वराज के मीनिंग अपने तरीके से उन्होंने अपनाए, और किस तरीके से उन्होंने स्वराज के मायने को अपने तरीके से परिभाषित किया और अपने अपने संघर्ष को अपने तरीके से शुरू किया। So we have discussed all these points in our earlier lecture. So in today's lecture, we are going to study about the towards the civil disobedience movement, and in this reference, we will study about the formation of Swaraj. We will study about the disillusionment within the Congress, and also we will study about the Simon Commission arrived in 1928. We will study how the commission was greeted or welcomed by the Indian people in 1928, and what was the impact of that commission on Indian people, and what were the reaction of British government by the protesting of Simon Commission in India in 1928. तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर, और इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, और हम पढ़ेंगे कांग्रेस में निराशा क्यों थी, और हम आज साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1928 में भारत में आया था, उसका आगमन हुआ था। और हम ये भी पढ़ेंगे साथ साथ कि किस तरीके से साइमन कमीशन का इंडिया में भारतीय लोगों ने स्वागत किया था, उसको कैसे वेलकम किया था, और उसका क्या प्रभाव रहा इंडिया के लोगों पर और पूरी इंडिया पर, भारत के लोगों पर और भारत पर, और उसका क्या रिएक्शन रहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सरकार का क्या रिएक्शन रहा, क्या उसकी कार्रवाई रही साइमन कमीशन के विरोध में, उन्होंने क्या एक्शंस लिए, उन्होंने क्या स्टेप उठाए, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम we will discuss in today's lecture. So let's start the explanation of today's topic. So children, when Mahatma Gandhi withdrew the non-cooperation movement as he felt the movement was turning violent in many places, then there was a widespread disappointment among the people, and there was even disillusionment among them also. तो कहने का मतलब ये है कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा था कि आंदोलन जो है वो हिंसक होता जा रहा है, तो लोगों में और कांग्रेस में एक निराशा सी फैल गई। और उसके क्या रीजंस थे, वाई, अब क्यों वो निराशा से फैल गई? लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स नाउ। The disillusionment prevailed among the people as well as the Congress leader, because some leaders of the Congress were now tired of mass struggles, and now they wanted to participate in the election of the provincial council.
सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1919। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के जो कुछ नेता थे इस तरह के जन आंदोलन से जो थे, जिस तरह के जन आंदोलन से वो थक चुके थे, अब वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है वो प्रांतीय परिषदों का चुनाव लड़ना चाहते थे। यानी वो प्रांतीय परिषदों में चुनाव में भाग लेना चाहते थे, और इसलिए व्हाट दे डिड, they felt what, that it was important to oppose British policies within the councils, could argue for reforms, but at the same time what happened, some leaders like C.R. Das and Motilal Nehru were not in favor of calling off the non-cooperation movement, but were in favor of participation in the election of council because of certain reasons। कहने का मतलब ये है कि अब उन्हें लगता था कि जो है वो परिषदों में रहते हुए, यानी किन्हीं जो लीडर्स जो थक चुके थे इस तरह के आंदोलन में पार्टिसिपेशन करके, उन्हें लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण हो सकता था और वे सुधार के लिए बहस भी कर सकते थे। पर साथ ही कुछ नेता ऐसे भी थे जैसे कि C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और उनके और समर्थक गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने और विधानसभाओं के चुनाव में न भाग लेने के पक्ष में थे, वो पक्ष में थे। यानी वो असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस नहीं बुलाने के पक्ष में थे और वो न भाग लेने के पक्ष में भी थे चुनाव में। उनके कुछ अपने अलग मानने थे, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि सम लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द काउंसिल वे नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, but C.R. Das and Motilal Nehru leaders, they also in the favor of election, but they did not want to show the councils were not truly democratic। यानी जो है कुछ लीडर्स जो थे वो परिषद के इलेक्शनों में चुनाव लड़ना चाहते थे और ये जताना चाहते थे कि ये जो परिषद है वो असल में लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक दिखाना उनका महत्वपूर्ण था उनके लिए। लेकिन जो C.R. दास जैसे लीडर्स थे, जो नेहरू जैसे लीडर्स थे, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन वो जो है इलेक्शन या परिषद को लोकतांत्रिक दिखाना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। So what was the next? What they started? Then many revolutionaries started opposing C.R. Das, and at last what happened? He resigned from the Congress party and formed the Swaraj party within the Congress to contest election. But the younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose wanted mass agitation and demanded complete independence। कहने का मतलब है कि ज्यादातर क्रांतिकारियों ने C.R. दास के विचारों का विरोध किया। अंत में क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस से पृथक हो गए, यानी अलग होकर उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, जिससे 1919 के इंडियन काउंसिल के अंतर्गत उन्होंने विधान सभाओं के चुनाव में भी भाग लिया। यानी अलग होकर उन्हें परिषद चुनाव में उन्होंने भाग लिया और भाग लेने का उनका मकसद ये था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनका प्रयोग किया जा सके, जो कि बहुत सारे लीडर्स नहीं कर रहे थे। नाउ व्हाट वे द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्वराज पार्टी फॉर्म बाय C.R. दास एंड हिज फॉलोअर्स। उनकी स्वराज के उद्देश्य क्या थे? टू अटेन द स्वराज फॉर इंडिया, सबसे पहला उद्देश्य था भारत के स्वराज प्राप्त करना। सेकेंड, टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इट्स कॉलोनियल एक्टिविटीज, यानी ब्रिटिश सरकार की नीतियों तथा उसके औपनिवेशिक कार्यों का विरोध करना, यानी उसकी नीतियों का विरोध करना और उसके कॉलोनियल एक्टिविटीज से विरोध करना। तीसरा था आपका टू एक्सेप्ट द प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड मेक इट सक्सेसफुल बाय पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ काउंसिल। तीसरा आपका उद्देश्य था कि काउंसिल में प्रवेश करके, यानी चुनाव लड़के काउंसिल में प्रवेश करके असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को फिर से अपनाना और उन्हें सफल बनाना, ये उनका अगला उद्देश्य था। So children, the years following what happened कि the end of the non-cooperation movement in 1922, nationalism had been still kept alive by Gandhian constructive workers, and in such a situation of internal debate and discussion, two factors again emerged and shaped the Indian politics। कहने का मतलब है कि 1922 में असहयोग आंदोलन के समाप्त होने पर भी राष्ट्रवाद की जो भावना थी अब भी जिंदा थी गांधी जी के सृजनात्मक कार्यों के द्वारा, और इसकी वजह इसी समय जो है इस आंतरिक बहस और असहमति के माहौल में भी दो ऐसे कारण उत्पन्न
उत्पन्न हुए जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा जो है वो फिर से बदल दी। वो दो कारक, वो दो फैक्टर्स कौन से थे? द फर्स्ट कॉज कि उन्होंने किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स की रूपरेखा को बदल दिया। फर्स्ट फैक्टर था आपका, फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। First was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapse after 1930. पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस का असर। 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमत गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से खत्म या धराशायी हो गई थी। सेकेंड आपका कारण था, एज डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. यानी कहने का मतलब है कि कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, एक्सपोर्ट कम होने लगा, और किसानों की अपनी उपज जो उनकी प्रोडक्शन था उनको बेचना और लगान चुकाना भी उनके लिए भारी पड़ने लगा। ये आपका दूसरा कारण था इकोनॉमिक क्राइसिस का। और उसी समय एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड, एट द सेम टाइम इन सच कंडीशन, इन सच इकोनॉमिक depressive condition, Sir John Simon as chairman constituted the Simon Commission in 1927 under the new Tory government in Britain. Tory was a political party in England. In response to the Indian nationalist movement, why the Simon Commission constituted? In response to the Indian nationalist movement, and the commission was named Simon Commission after him, and it arrived in India in 1928. यानी इसी आर्थिक संकट के समय जो है सर जॉन साइमन ने साइमन कमीशन का 1927 में नए टॉरी सरकार के नेतृत्व में गठन किया। टॉरी एक राजनीतिक पार्टी थी इंग्लैंड में। यह राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित हुई थी, यानी राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उसको जवाब देने के लिए उसके रिस्पांस में उसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये भारत में 1928 में पहुंचा। कौन? साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? द कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड टू सजेस्ट फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। उसका गठन क्यों हुआ था? व्हाई द साइमन कमीशन वाज why the commission was appointed to look into the function of the constitutional system in India and to suggest further constitutional reforms. यानी साइमन कमीशन को भारत के आगामी संवैधानिक सुधारों हेतु भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। यहाँ पे संवैधानिक सुधारों को चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए भारत साइमन कमीशन को भेजा गया था। Then what happened when it arrived? When Simon Commission arrived in India in 1928, it was welcomed with the slogan "Go back, Simon," strikes, demonstrations and black flags. यानी जब भारत में 1928 में साइमन कमीशन पहुंचा तब उसका स्वागत हड़तालों, काले झंडों और साइमन वापस जाओ के नारों के साथ किया गया। Then what happened? अब ये साइमन कमीशन was boycotted by Indians because of variety of reasons. बहुत सारे इसके कारण थे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ। तो the first reason why the Simon Commission was boycotted by the Indian people. पहला रीजन था it did not include Indian member. They were all British. यानी इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें सारे ब्रिटिश के ही सदस्य थे। सेकंड रीजन था कि क्यों साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। The commission did not have any scheme of reforms for the Indians. यानी इन कमीशन में भारतीय लोगों के लिए कोई भी सुधार की योजना नहीं थी। थर्ड आपका जो कारण था क्यों उसका बहिष्कार हुआ, the terms of the commission's appointment did not give any indication of Swaraj, while the demand of the Indians was only Swaraj. कहने का मतलब है कि कमीशन की रूपरेखा यानी शर्तों में स्वराज के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई थी, कोई भी लेख नहीं था, जबकि भारतीय लोगों की मांग केवल स्वराज हासिल करना ही था। यानी साइमन कमीशन में स्वराज का कोई भी जिक्र या नहीं था। नाउ after the reason of the protesting of Simon Commission, there are some recommendation of the Simon Commission. यानी साइमन कमीशन की कुछ जो हैं वो सिफारिशें भी थी, कुछ उसकी सिफारिशें भी थी, यानी रिकमेंडेशंस भी थे। और वो क्या रिकमेंडेशन थे ऑफ दिस
कमीशन। पहला था आपका, पहली सिफारिश थी साइमन कमीशन की, एक्सपेंशन ऑफ विधानमंडल ऑफ प्रोविंसेस, यानी प्रोविंसेस की विधानमंडल का विस्तार हो। दूसरा था आपका, इंडियन काउंसिल शुड बी एस्टैब्लिश इंक्लूडेड इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी भारतीय परिषद की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय तथा ब्रिटिश प्रतिनिधि दोनों ही शामिल हों। तीसरा आपका रिकमेंडेड सिफारिश थी कि टू सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया एंड सिंध फ्रॉम बॉम्बे, यानी बर्मा को भारत से और सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए। चौथी सिफारिश थी एक्सपेंशन ऑफ सफरेज शुड बी इंक्लूडेड, यानी मताधिकार का विस्तार किया जाए। ये सारी सिफारिशें जो थी वो, और आपका लास्ट में क्या सिफारिश थी, एक थी लास्ट सिफारिश थी आपकी, यानी रिकमेंडेशन था टू एस्टैब्लिश द पावरफुल गवर्नमेंट इन सेंट्रल, यानी केंद्र में शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जाए। सो दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन अराइव्ड इन 1928 इन इंडिया। नाउ रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन वाज फेल्ड टू satisfy the Indian people because there was no indication of the formation of strong government, but along with there was restriction imposed on the powers of government, and it also refused to accept the right to vote, जैसे कि रिकमेंडेशन में कहा गया था। एंड एज इट वाज, व्हाई इट रिफ्यूज्ड टू accept the right to vote, because it was declared as baseless according to the commission। यानी कहने का मतलब है कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो भारतीय लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें कहीं स्वराज के फॉर्मेशन निर्माण की बात नहीं कही गई थी, बल्कि यहाँ पे इसमें जो है गवर्नर के शक्तियों पर भी अंकुश लगा दिया गया था, और इन्होंने मताधिकार को भी जो है निरस्त कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि ये बेसलेस है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है द इंडियन पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द रिपोर्ट, तो इंडियन जो लोग थे वो इस रिपोर्ट की निंदा करने लगे। नाउ अब इस आफ्टर क्रिटिसिज्म, इस निंदा करने के बाद जो था कि व्हाट वे द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिएक्शन क्या थे टू द बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन ऑफ 1928। इस तरह के जो अब रिकमेंडेशंस के बाद जब ये चीजें नहीं पाई गई, तो जब प्रोटेस्ट हुआ, जब क्रिटिसिज्म हुआ, तो व्हाट वे द रिएक्शंस। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश रिएक्टेड बाय ट्राइंग टू विन ओवर द इंडियंस आफ्टर द बायकॉट, यानी बहिष्कार के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को जीतने का प्रयास किया। बट व्हाट हैपेंड इन एफर्ट टू विन ओवर, द Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominant status for India in an अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि विरोध को शांत करने के लिए, यानी इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने एक डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। मतलब एक डोमिनियन स्टेटस जो है उसमें ऐलान कर दिया उसके, और उसमें इसके बारे में उन्होंने कोई सीमा भी नहीं बताई। मतलब कहने का मतलब था कि डोमिनियन स्टेटस का उन्होंने ऐलान इसलिए किया ताकि इंडियंस को ये सेटिस्फैक्शन मिल सके कि उनके बारे में भी उसमें बातचीत की गई है, यानी उनके डिमांड्स को भी रखा गया है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं बताई गई, उसका कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया, और तो इसीलिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कंफ्यूज थे अबाउट दैट स्टेटस। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्या अगला रिएक्शन क्या था कि अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू बी हेल्ड इन लंदन टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन को भी आयोजित किया जाएगा। ये भी एक रिएक्शन किया गया था कि लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका डिस्कशन करने के लिए वहाँ पर उसका आयोजन किया गया। सो चिल्ड्रन, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रिएक्शंस। ये रिएक्शंस थे ब्रिटिश के कि हाउ द किस तरीके से जो है आपका साइमन कमीशन इंडिया में अराइव्ड हुआ और उसके क्या इम्पैक्ट हुए, उसके क्या असर हुआ और किस तरीके से लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। सो चिल्ड्रन, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ साइमन कमीशन, दिस इज द साइमन कमीशन। और उसके बाद से जो था बहुत सारी इसके बाद जो है ब्रिटिश के रिएक्शंस के बाद भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सामने आई।
And children, as we know that the Simon Commission was greeted and welcomed by the Indian people with demonstrations, strikes, and black flags and "Go Simon Back" slogans. And when it arrived in India in 1928, in the protest, and in this protest, Lala Lajpat Rai he led a mob to protest against the Simon Commission, and he was lathi charged and died after a week. Then what happened after his death? After a week, some agitated radical Congress leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they changed their goal from Swaraj to Purna Swaraj, yani complete independence, and they formed the Purna Swaraj Party in the Lahore session in 1929. And at that session, he declared that now their goal was to attain the Purna Swaraj, yani complete independence, and then he declared that ki Purna Swaraj Day would be celebrated on 26 January 1930. But the celebration attracted very little attention, and further Gandhi ji started thinking to work again over the party, over the movement, and then he was thinking to launch a new method of movement, a new method of revolution. तो जैसा कि बच्चों की ऐसा था कि हम जानते ही हैं कि साइमन कमीशन जो था, जब भारत में आया, उसका आगमन हुआ, तो उसका स्वागत जो है काले झंडों के साथ हुआ, हड़ताल के साथ हुआ, और जो है साइमन वापस जाओ साइमन, इस तरह के नारों के साथ जो है उसका स्वागत हुआ। तो उसी समय जो है लाला लाजपत राय जो थे, एक भीड़ को जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, और जिसमें उनको जो है लाठी चार्ज उन पे की जाती है, और कुछ हफ्तों बाद उनकी जो है गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तब उग्रवादी नेता, जैसे उग्रवादी बहुत सारे कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में उन्होंने अपने स्वराज के थीम को, उन्होंने अब लक्ष्य को बदल के उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कर दिया कि अब उन्हें जो है वो पूर्ण स्वराज हासिल करना है, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करना है। और इसीलिए उन्होंने लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सेशन में इस बात की चर्चा की, और वहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया कि वहाँ पर ये कहा गया कि 1929 में पूर्ण स्वराज के लिए वो शपथ लेंगे, और 26 जनवरी 1930 को वो पूर्ण स्वराज डे के रूप में या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन इस उत्सव की ओर बहुत सारे लोगों का ध्यान, बहुत कम लोगों का ध्यान गया, और गांधी जी को तब जाके उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें जो है फिर से इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, और फिर से इस आंदोलन को एक नया रूप देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो है स्थिति जो है वो और ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। सो चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप हियर, एंड इन आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों, आज हम यहीं बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक, अगले सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, एंड गुड बाय।